Next example is a proof through division. So the proposition is 7 raised power n minus 1 is divisible by 6 for each integer n greater than or equal to 0. So all the steps are same. First step is a basis step, and in the basis step we need to check this element 0 in this Pn, and the Pn is basically 7 raised power n minus 1 is divisible by 6 is our Pn. So for 0 we need to check that this number is divisible by 6 or not. So for that we put here 7 raised power 0 minus 1 is equal to 1 minus 1, which is 0, and 0 is divisible by 6. Since 0 can be written as 0 is equal to 0 into 6, which is the definition of divisibility. So the basis step is complete here, and we move to the inductive step, in which we need to prove this statement that for all integer k greater than equal to 0, if the property is true for n is equal to k, then it is true for n is equal to k plus 1, which is exactly saying that if pk is true, then pk plus 1 is also true. So we suppose here pk for k greater than equal to 0, which will be, we suppose that 7k minus 1 is divisible by 6 for an arbitrary but fixed integer k, which is greater than equal to 0, and we must show that 7k plus 1 minus 1 is divisible by 6. So what we have supposed is 7 raised power k minus 1 is divisible by 6, and by applying the definition of divisibility, since it is divisible by 6, we can write it like 7k minus 1 is equal to 6 into some integer r, and then we need to check that 7 raised power k plus 1 minus 1 is divisible by 6 or not. So we compute this number or simplify this number to check whether it is divisible by 6 or not. So for this we have separated by using the law of exponents. So 7 into 7 raised power k minus 1, and from here we need to split this 7 so that we get this number 7k minus 1. So we split it in say 6 plus 1, and after multiplying we get 6 into 7 raised power k plus 7 raised power k minus 1, and here in the term in the bracket we see that this is divisible by 6 as we have assumed earlier. So this is replaced by 6r, which is given by this equality. What about this 6 into 7 raised power k? We see that it is a multiple of 6 and hence divisible by 6, since 7 raised power k is an integer. Where the last equality hold by inductive hypothesis. Thus by factoring out the 6 from the extreme right hand side, equating the extreme left hand and extreme right hand sides, we have this equality. So we have 7 raised power k plus 1 minus 1 is equal to 6 into 7 raised power k plus r, and we know that r is an integer and 7 raised power k is also an integer. Since k is greater than equal to 0, we can deduce that 7 raised power k plus 1 minus 1 is divisible by 6.
and that was to be shown, and this is the proof through mathematical induction. Now we move to the next level of mathematical induction, and this method is known as strong mathematical induction. So for this we have given a property Pn that is defined for integers n, and let a and b be fixed integers such that a is less than or equal to b. Suppose the following two statements are true. So the first statement is, starting from a we are putting the integers in this property Pn. So we have pa plus 1 up to pb, and these all the terms are true. It is called basis step. अब यहाँ पे जो फ़र्क हमें देखने की ज़रूरत है मैथमेटिकल इंडक्शन में और स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन में, वो ये फ़र्क है कि हमारे पास जो टर्म्स पहले हमें एक फिक्स नंबर के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना पड़ता था, अब यहाँ पे कुछ मज़ीद नंबर्स आ जाएंगे और जो हमारा बेसिस स्टेप है उसमें वी नीड टू चेक फॉर सम नंबर्स कि ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है, और वो नंबर जो हैं वो कौन से नंबर्स होंगे, वो हमें गिवन नंबर होंगे जो कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b है, वो फिक्स्ड इंटीजर्स होंगे। उनके दरमियान जितने भी इंटीजर्स आएंगे उन सब के लिए हमें इस प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये ट्रू है। एंड फॉर द इंडक्टिव स्टेप जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी है कि वो ट्रू है, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट है देन द सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन से डिफरेंट होगी, एंड दैट स्टेटमेंट इज़ फॉर एनी इंटीजर k ग्रेटर देन और इक्वल टू b if pi is true for all integers I from a through k. So now what we are assuming here is कि a से लेकर, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो a है और उससे बड़ा हमारे पास एक नंबर आता है b, एंड देन सो ऑन हम आगे चलते जाते हैं एंड हम बात करते हैं एक नंबर k की। सो वी आर सेइंग दैट कि हमारा जो प्रेडिकेट है Pn वो ट्रू है स्टार्टिंग फ्रॉम a एंड देन गोइंग थ्रू b एंड अप टू k, यानी k तक जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, a से लेकर k तक जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, उन सब के लिए जो pi है वो दुरुस्त है। नाउ वी आर नॉट सपोजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर k and moving to k plus 1, but we are saying that this pi is true for all the integers between a and up to k, between the integers a and up to k. So after assuming this statement, then we prove that pk plus 1 is true. सो मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका जो फ़र्क है इंडक्टिव स्टेप में वो ये है कि वहाँ पे हम एक आर्बिट्रेरी बट फिक्स्ड नंबर सपोज करते थे कि जो कि ग्रेटर होता था किसी फिक्स नंबर से, और हम कहते थे कि इफ़ पी के इज़ ट्रू पी के प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। सो वहाँ पे एक सिंगल जो एंट्री थी आर्बिट्रेरी उसके लिए हम बात करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सपोज करना पड़ेगा कि k और k से पिछले तमाम इंटीजर्स के लिए ये बात दुरुस्त है जो a से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड देन हमें मूव करना है pk प्लस 1 की तरफ। सो दिस इज़ नोन एज स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये फुलफिल हो जाते हैं तो हमारे जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाती है।
Let's see a proof through strong mathematical induction. So we are now applying a strong mathematical induction on a proof which is any integer greater than 1 is divisible by a prime number. So कोई भी integer लें जो कि 1 से बड़ा है वो प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। इसके प्रूफ में अगर सिंपल इसको हम एल्गोरिथमिक वे में अगर हम इस प्रूफ को देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नंबर चूज़ करें विच इज़ ग्रेटर देन 1 और उसके ऊपर दो कंडीशन लगा दें कि आइदर इट इज़ अ प्राइम और इट इज़ नॉट अ प्राइम। कोई भी अगर नंबर हम सपोज करें तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो या तो प्राइम होगा या वो नहीं प्राइम होगा। प्राइम के केस में प्राइम डिवाइज़र वो खुद होगा और वो उससे डिवाइड करता होगा। नॉट प्राइम के केस में हम क्या कर सकते हैं, वो कंपोजिट कहलाएगा और कंपोजिट को हम लाजमी तौर पे उससे छोटे नंबर्स में की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो जैसे ही उन प्रोडक्ट्स में लिखा जाएगा तो उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि n इज़ इक्वल टू r इंटू एस, वेयर r एंड s आर लेस देन दैट नंबर विच इज़ n। तो उसके बाद हम r और s के ऊपर बात करेंगे कि r और s क्योंकि इसके प्रोडक्ट में हैं तो हो सकता है r या s में से कोई प्राइम हो। अगर हम r को चूज़ कर लें तो उसके ऊपर भी दो कंडीशंस आ जाएंगी कि वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट अ प्राइम। सो प्राइम के केस में हम कहते हैं कि डिवाइड कर रहा है और नॉट प्राइम के केस में कहते हैं कि हम फर्दर उसको जो है वो कंपोजिट नंबर के तौर पे लिखेंगे और एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखेंगे। और इस तरीके से ये एक फाइनाइट नंबर के बाद ये स्टेप्स जो है ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास कोई ना कोई प्राइम नंबर आ जाएगा। सो ये एक एल्गोरिदम है जो इस थ्योरम के लिए वर्क करता है। लेकिन जब हम प्रूफ थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन से करने की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिंपल हो जाता है और हम इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से सिंपली इसे प्रूव कर देता है। सो आवर पी एन इज़ एन इज़ डिविजिबल बाय सम प्राइम नंबर। सो इस पी एन के लिए सबसे पहले जो हमें काम करना है, क्योंकि हम इंटीजर ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, सो 2 इज़ आवर स्टार्टिंग इंटीजर और इसको हमें चेक करना है कि 2 इज़ डिविजिबल बाय प्राइम और नॉट। तो 2 इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 2 प्राइम है। सो यहाँ पे ये बात जो है ये दुरुस्त हो जाती है और हमारा जो बेसिक स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम ये सपोज करते हैं कि फॉर ऑल इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 Pi is true for all integers I from 2 through k। तो हमने ये बात मान ली है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2 तमाम जो हमारे पास Pi's हैं वो ट्रू हैं अप टू k। और इसको अगर हम लिखना चाहें, एक्सपेंडेड फॉर्म में देखना चाहें, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ P2 इज़ ट्रू, देन P3 इज़ ट्रू, और इस तरीके से ये हम मूव करते जाएंगे और Pk भी ट्रू है। सो हमने ये बात कही यहाँ पे कि इन तमाम नंबर्स के लिए जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और k तक जा रहे हैं, इन तमाम नंबर्स के लिए जो गिवन Pn है वो ट्रू है। और इस चीज़ को अज्यूम करने के बाद हमें प्रूफ ये करना है कि Pk plus 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। सो what we need to do is, now we see that we need to show that k plus 1 is divisible by some prime number. So k plus 1 could be itself a prime number और k plus 1 is not a prime number. So यहाँ पे हमारे पास दो केसेस अराइज हो गए हैं कि या तो वो खुद प्राइम है या वो खुद प्राइम नहीं है। और
पहले केस में अगर हम देखें तो अगर k+1 जो है वो प्राइम है तो वो अपने आप को डिवाइड करता है और हैंस इट इज़ प्रूवन दैट k+1 इज़ डिविजिबल बाय प्राइम। जो दूसरा केस है उसमें अगर हम नोट करें तो k+1 अगर प्राइम नहीं है तो वो लाजमी तौर पे कंपोजिट होगा, और अगर वो कंपोजिट है तो उसके ऊपर हमारे पास जो कंडीशन है a और b पे वो क्या है कि a मस्ट बी बिटवीन 1 एंड k+1 एंड b मस्ट बी बिटवीन 1 एंड k+1। सो ये ऐसे दो हमें फैक्टर्स मिलते हैं k+1 के जो k+1 से लेस होते हैं और 1 से बड़े होते हैं। सो अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को देखा जाए तो क्या हम a के बारे में ये कह सकते हैं कि a इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंडिंग एट k विच इज़ लेस देन k+1। सो यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन आ चुका है, लेस देन इक्वल का निशान आ चुका है, क्योंकि हमने 1 से एक बड़ा इंटीजर यहाँ से चूज़ किया है और राइट साइड पे हमने k+1 से एक छोटा इंटीजर चूज़ किया है। सो नाउ दिस इज़ एन इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी को अगर हम देखें तो ये नंबर जो है ये हमारे हाइपोथेसिस, इंडक्टिव हाइपोथेसिस पे पूरा उतरता है कि ये बिटवीन है 2 एंड k के, और 2 और k के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में हमने क्या सपोज़ किया, वो सब जो है वो किसी न किसी प्राइम से डिवाइड होते हैं। लाइक हमने कहा p2 इज़ 2, इसका मतलब है कि 2 इज़ डिविजिबल बाय सम प्राइम, और p3 इज़ 2 का मतलब था कि 3 इज़ डिविजिबल बाय प्राइम। सो इस a के बारे में हम क्या कह सकेंगे कि a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय सम प्राइम नंबर p। अगर हम इस इक्वेशन की तरफ देखें तो क्योंकि a जो है वो डिविजिबल है प्राइम से, और और k+1 इज इक्वल टू ए बी का मीनिंग है कि a डिवाइड करता है k+1 को, तो बाय यूजिंग द ट्रांजिटिव लॉ, जो ये ट्रांजिटिव लॉ हमें ये बताता है कि इफ नंबर इज डिवाइडिंग सम नंबर एंड दैट नंबर इज ऑल्सो डिवाइडिंग सम अदर नंबर इंटीजर, तो हम कह सकते हैं कि a जो है वो डिवाइड करता है c को। यहाँ पे भी ये चीज़ बताई जा रही है कि a इज़ डिविजिबल बाय प्राइम p, तो p जो है वो a को डिवाइड करता है और a जो है वो k+1 को करता है, तो इट मीन्स देयर इज़ अ प्राइम p विच डिवाइड्स k+1। वी हैव शोन दैट k+1 is also divisible by some prime number which is exactly to be shown here, और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाता है।